بہت ہی فروٹفل. آج کا یہ کلام خدا ہمیشہ کی طرح بہت ہی پھلدار ایک بار پھر سے ہونے کو ہے. ہاللیلویا. کیونکہ آج کی جو آپ دیکھ رہے ہیں آیت مقدسہ وہ بھی ہماری 10 حکموں میں سے ہی ہمیں ملے گی. اور یہ ہے آج کی ہماری آیت مقدسہ خروج کی کتاب دا بک آف ایکسڈس جو کہ مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی، اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت مقدسہ. آج کی جو آیت مقدسہ ہے 10 حکموں پہ ہم کرنے کو ہیں کلام، اور آج کی آیت مقدسہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. مرکزی آیت ہماری خروج کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی پہلی تا تیسری آیت میں اس استباق پہ کچھ یوں مرقوم ہے. غور سے سنیے گا عزیزو. اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا. میں ہوں. میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. خدا کا شکر ہو. آمین ثم آمین. ہاللیلویا. تو عزیزو، آج کا کلام خدا جو ہم شروع کرنے کے ہیں اس کی آیت مقدسہ آپ نے سنی کہ کیسے زندہ خدا فرماتا ہے کہ میں ہوں جس نے تجھے ملک مصر یعنی غلامی کے اس ملک سے نکالا. آج بھی ہمارے بہتیرے مسیحی غلامی کے اندر ہیں، اور مصر ہی کی غلامی کے اندر ہے. کوئی بابل کی غلامی کے اندر ہے، کوئی روم کی غلامی کے اندر ہے. جسمانی نہیں، میں روحانی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. مصر کی غلامی کیا تھی؟ لوہے کی حکومت. مصر کی غلامی کیا تھی؟ ایسی روایات جن کا زندہ خدا سے میں ہوں سے نہیں کچھ لینا دینا. مصر کی غلامی کیا تھی؟ ایسا طور طریقہ جو خدا کا نہیں تھا. مصر کی غلامی کیا تھی؟ ایسے حکم جو خدا کے نہیں تھے. مصر کی غلامی کیا تھی؟ آسان لفظوں میں ایک لفظ میں بتاؤں گا، گناہ. گناہ، گناہ. آج بھی ہم بہتیرے لوگ ہیں جو گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، مصر کی غلامی میں زندگی گزارتے ہیں. لیکن عزیزو، آج آپ کا بیٹا، آپ کا خداوند اور میرا خداوند جو یسوع المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا ہے، اس نے جب اپنا خون بہایا، اپنے آپ کو قربان کیا ہمارے لیے، اپنی جان کا فدیہ دیا اور اپنے خون کا کفارہ دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو آج اس نے ہمیں ابدی مصر سے نجات دلائی ہے. آج اس نے ہمیں گناہ سے نجات دلائی جس کی مزدوری موت ہے. آج اس نے ہمیں زندہ خدا کے چرنوں میں آنے کی قدرت عطا فرمائی، اور جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا اسے بحال کیا، اور ان حکموں کو دے کر ہمیں ایک نرالی قوم بنایا. ان حکموں کو دے کر ہمیں ایک انوکھی قوم بنایا. ان حکموں کو دے کر اس نے کہا کہ ان حکموں سے تمہاری عزت ہوگی، ان حکموں سے تم پہچانے جاؤ گے کہ تمہارا پیروکار کون ہے، تمہارا بادشاہ کون ہے. زندہ خدا نے ہمیں یہ حکم دیے تاکہ ہم دوسری قوموں سے انوکھے ہوں. بیکاز وی آر یونیکس. ہم انوکھے ہیں، شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم. ان حکموں پر عمل کرنے سے، زندہ یسوع المسیح پر ایمان لانے سے ہی ہم بنتے ہیں. تو عزیزو، جب خدا نے ہمیں اس ابدی مصر کی غلامی سے چھڑایا، پہلے میں ہوں نے، اور اب اس نے جو کہتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، چرواہا میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا، شروع اور انجام، اول اور آخر میں ہوں، بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں، دروازہ میں ہوں. جو زندہ خدا کہتا ہے میں ہوں، سو میں ہوں. حیا شرحیا زندگی مجھ میں پائی جاتی ہے. پرانے عہد نامے میں ہوں یعنی یہوہ الوہیم زندہ خدا باپ نے چھڑایا، جو کہ ہم پڑھ سکتے ہیں خروج 20 باب اور اس کی دوسری آیت میں ہم نے پڑھا کہ کیسے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا. کون ہے وہ؟ میں ہوں. اور آج یسوع المسیح میں ہوں جو ہے وہ ہمیں ابدی مصر کی غلامی سے چھڑاتے ہیں. تو عزیزو، ان 10 حکموں کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں اور ان 10 حکموں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پہلا حکم ہمیں نظر آتا ہے، تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا.
اب اسی احکام اشرا کو جب آپ ریپیٹیشن میں دیکھتے ہیں، جب آپ ریپیٹ دیکھتے ہیں کہ یہ زندہ خدا کا پاک کلام جو ہے، زندہ خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ جس کے بارے میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا ہے، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، یعنی کہ شخصی خدا یسوع المسیح اور تحریری خدا بائبل مقدس خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ جو ہمارے پاس ہے، اس کلام کے بارے میں زندہ خدا فرماتا ہے کہ یہ کلام پھر سے بھی ریپیٹ ہوا۔ یہ کہاں پہ ریپیٹ ہوا؟ آپ استثنا کی کتاب اس کا 5واں باب جب آپ پڑھتے ہیں، استثنا کی کتاب اس کا 5واں باب جب آپ پڑھتے ہیں تو عزیزو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ جی ہاں 5ویں باب میں یہ احکام اشرا جو 10 حکم ہے دوبارہ ریپیٹ ہوئے، کیونکہ ہمارے بہت تیرے لوگ ایسے ہیں پہلی بات تو انہیں یہی نہیں پتا کہ یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، یہ جو 10 حکم ہیں، یہ لکھے کہاں ہیں، اور پھر اگر جن کو پتا ہے وہ آگے پڑھنے کی ہمت نہیں کرتے تو دوبارہ استثنا 5واں باب پڑھتے ہیں جو کہ ریپیٹیشن کی کتاب ہے، جو کہ 5ویں کتاب ہے بائبل مقدس میں سے، اس میں 5ویں باب میں آپ پڑھیں گے تو یہ 10 حکم دوبارہ پہ وہاں سے ریپیٹ بھی ہوئے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ انہیں پڑھتے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ خدا نے یہ حکم دیے کیوں؟ خدا نے یہ حکم دیے کیوں؟ کہ ہم ایک الگ نسل ہوں، الگ قوم ہوں، ہمارا رہن سہن الگ ہو۔ اب ان حکموں کو کیوں دیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ، بٹ سب سے پہلا حکم جو ہے تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر معبودوں کو پہلے مانا جاتا تھا، اب بھی مانا جاتا ہے، اور ان فیوچر بھی مانا جاتا رہے گا، کیونکہ انسان بڑا ہی کوئی ٹھیٹ ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ زندہ خدا نے جو حکم دیے وہ اس لیے دیے کیونکہ ان حکموں کی عدولی، ان حکموں کو پہلے توڑا جاتا رہا تھا، توڑا جاتا ہے، اور ان فیوچر بھی توڑا جائے گا، اس لیے خدا نے یہ پہلے ہی حکم دے دیا کہ بھائی یہ سن لو، اینج نہیں جے کرنا، ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਣ वाले हो, आ लिखा जे इसके अलावा नहीं जो कुछ करना। क्योंकि आप देखते मुल्क मिस्र से जब आए तो वहाँ पर अलग अलग देवताओं और अलग अलग माबूदों की पूजा होती थी। जो बाल देवता है, बछड़े बनाए गए, गोल्डन काफ बनाए गए, इसी तरह अलग अलग देवताओं की पूजा होती थी। और पूजा जब होती है शैतान की, देवताओं की, खुदा के अलावा किसी भी माबूद की पूजा होती तो वो खुदा को नाकाबिल बर्दाश्त है। इसको बुत परस्ती कहते हैं। और अजीजों ये बुत परस्ती जिस्मानी भी होती है और रूहानी भी होती। जिस्मानी तो मैंने आपको बताई, और रूहानी बुत परस्ती है जिंदा खुदा के हुक्मों की अदूली करना। ये खुदा ने इसलिए हुक्म दिए तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना। आज आप देखते हैं कि मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना, हम मानते हैं गैर माबूदों को। हमारे बहुतेरे बच्चे ऐसे हैं जो शौकिया हमारे हिंदू बहन भाइयों के मंदिरों में भी जाते हैं, और जाने में या अनजाने में, जाने में या अनजाने में, मेरे को तो लगता है जानते हुए करते होंगे सब, इन्होंने सारे कम्मा का पता है तो उन्होंने भी पता ही होना। ये हिंदुओं के मंदिरों में जाके क्या करते हैं आप सभी जानते हैं। माँ कौन से माबूद होते हैं आप सभी जानते हैं। होलियाँ मनाई जाती हैं, दिवालियाँ मनाई जाती हैं, मैं पर्सनली बहुत सारों को जानता हूँ कि बड़े फ़ख्र से आकर ये चीज़ें बताते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ज़रा मैं आगे चलता हूँ दूसरे हुक्म पर। तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान या नीचे ज़मीन या ज़मीन के नीचे पानी में हो, तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ, और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं उन पर रहम करता हूँ। भाई ये तो हो गया पहला और दूसरा हुक्म। तो ये हमारे पास आ गया अजीज़ों पहला और दूसरा हुक्म कि ना तो भाई कोई तराशी हुई मूरत बनानी है, ना मेरे हजूर गैर माबूदों को मानना है, ना किसी चीज़ की सूरत बनानी है, खा वो आसमान ज़मीन या ज़मीन के नीचे पानियों में हो। अब पहली बात तो ये कहा गया कि ना तो शक्ल बनानी है,
कहते हैं ना कोई इमेज बनानी है। तराशी हुई मूरत किसे कहते हैं? कुंदा हुआ मुजस्समा टाइप, तराशी हुई मूरत जैसे अब स्टेचू हो गया। आप सभी जानते हैं हम मसीहियों के अंदर ये काम होते हैं, किसी गैर कौम को तो छोड़ें, ये हम मसीहियों के अंदर काम होते हैं, अपने आप को जो क्रिश्चियन कहते हैं उनमें ये काम होते हैं। खुदा क्या कह रहा है? ना कोई तराशी हुई मूरत बनाना और ना किसी चीज़ की सूरत जो आसमान पर हो। अब सूरत भी हम बनाते हैं कैलेंडरों की शक्ल में, कपड़े पर कुंधी हुई होती हैं, कागज़ की शक्ल में, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पैनाफ्लेक्सेस जो लगे होते हैं, बना देते हैं सूरत। और अब किस किस की नहीं बनानी? पहली बात तो लिखा है कि किसी चीज़ की भी ना बनाना, किसी चीज़ की भी सूरत ना बनाना, खा वो आसमान पर। अब जो आसमान पर है, आसमान पर क्या क्या है? पहली बात तो ये खुदा, खुदा का तख्त, फरिश्ते, क्रोबीम, सराफीम, तराफीम, 2 पर वाले फरिश्ते, 4 पर वाले फरिश्ते, 6 पर वाले फरिश्ते, 24 बुजुर्ग, 4 जानदार, 4 जानदारों में से एक का जो चेहरा है वो शेर बबर की मानित, एक का बैल की मानित, एक का अकाब की मानित और एक का इंसान की मानित। वो किसी को भी नहीं बनाना, किसी को भी नहीं बनाना। अब ये ना बनाने का, अब आप कहेंगे कि ये तो भाई तस्वीरें तो बहुत ज़्यादा होती है, ये एक जनरल नॉलेज के लिए। ये जो खुदा मना कर रहा है, ये उस सूरत में मना कर रहा है कि जब आप उसकी पूजा करते हैं। अगर आप पूजा करने की जहन से बना रहे हो तो भाई बना ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि देखे जी हमने यीशु मसीह की फ़ोटो लगाई है, हमने फरिश्तों की लगाई है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके सामने होंगे, लेकिन वो कहते हैं हम इसे सिजदा नहीं करते। फरिश्तों की लगाई हुई है, मुक़द्दसा माँ मरियम की लगाई हुई है, आजकल तो जो कैथोलिक प्रीस्ट है उनकी भी बनाई जाती है, सेंट एंथोनी की, सेंट पैट्रिक की, उनके आगे भी दुआएं की जाती हैं। तो कहने का मकसद ये हमारे मसीहियों का ये हाल है। और वो कहते हैं, अच्छा कई लोग कहते हैं कि जो देखें जी हमने ये बनाया तो है लेकिन हम इसे सजदा नहीं करते। आपने इस हुक्म का पहला हिस्सा देखा है? इस हुक्म का पहला हिस्सा है कि तू चीज़ की सूरत बनाना ही नहीं। क्या नहीं करना? बनाना ही नहीं। फिर उसके बाद उसे सिजदा ना करना। फिर उसके बाद लिखा क्या? उसे सिजदा ना करना जो आसमान पर हो। आसमान पर मैंने आपको चीज़ें बताई। और फिर लिखा जो ज़मीन पर। ज़मीन पर कौन है? आज जो जिंदा खुदा के लोग हैं, जिंदा खुदा के नबी हैं, रसूल हैं, चरवाहे हैं, मुबश्शिर हैं, जिंदा खुदा में मुंतखब किए हुए जो उस्ताद है, मुंतज़म है, मददगार है, जो खुदावंद खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जो खुदावंद के पाक कलाम को आगे फैला रहे हैं, ऐसा कोई भी हो उसकी भी आपने सूरत या मूरत नहीं बनानी। और आज देखिए हम कब्रों के ऊपर चादरें भी चढ़ाते हैं और मुर्दों को भी पूछते हैं। हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, पता नहीं हमारी मुखलसी कैसे होगी। हम इस तरह करने से क्या साबित करना चाहते हैं कि हमें यीशु मसीह बचा लेगा? तो भाई पता नहीं कैसे बचा लेगा। मेरे को तो लगता है जो कलाम खुदा को मैंने सीखा है, जिस अंदाज से मैंने सीखा, और जो खुदा के रूह की बात है, नहीं बचाएगा। क्योंकि हम जानबूझ के ये सारा कुछ कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हमें आज पता चला है। ओ भाई आप जवान हो गए हो, आपको दुनिया के सारे काम आ गए, आपने खुदा के कलाम को नहीं पढ़ा। आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आप बिना कलाम के पैदा हुए हैं। आपने कलाम को नहीं पढ़ा और आप पैदा हो गए और बड़े होते जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह ही ये है कि आपने ज़िंदा खुदा को नहीं पढ़ा। और जिसने नहीं पढ़ा, जो ऑन कॉल सुन रहा हो, जो लाइव बैठे हुए सुन रहे हैं, तैयार रहें आप और आपकी नस्लों के साथ जो होने को है और जो हो रहा है। आप सभी जानते हो, और इससे आगे आने वाले वक्तों में और बदतर होगा, क्योंकि अब आपने ये कलाम सुन लिया है और अब आप ये सुनने के बाद भी ना पढ़ेंगे तो फिर तो आप समझ जाएं कि आप किससे अदावत रखे हुए हैं। और आगे लिखा है पानियों में हो। अब पानियों में का क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि जो लोग मर जाते हैं, और इकोसिस्टम ऐसा है ज़मीन का कि कई कई हज़ारों सालों के बाद जहाँ पर खुश्की होती है वहाँ पे पानी आ जाता है, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे खुश्की हो जाती है। तो जो ज़मीनों के अंदर कब्रों में है, कब्रों में जो मर गए हैं उनकी भी आपने तराशी मूरत या सूरत नहीं बनानी। अब ये सारी उन चीज़ों की बातें हो रही हैं जो जान रखती हैं, जो जानदार हैं, और जिनके अंदर या फिर कुछ हरारत है, जैसे चांद सूरज वगैरह जो भी है। तो लिखा है जो पानियों में हो। पानियों का मतलब है जो ज़मीन के नीचे हैं, जो कब्रों के अंदर है, उनको भी आपने नहीं बनाना। जो नबी रसूल
फौत हो गए हैं, जो नबी रसूल मसीह में सो गए हैं, जो नबी रसूल चरवाहे जो इस वक्त नहीं हैं। कुछ लोग जाते हैं इसराइल के अंदर, और जहाँ पर उसे द पैट्रिक लेक कहा जाता है, पतरस की झील कहा जाता है, जहाँ पर यीशु मसीह की उनके साथ मुलाकात होती है, वहाँ जाके उस पानी को अपने सर पे लगा के सिजदा करते हैं। हाँ, ये मतलब सिजदा करने ही नहीं चाहिए। गैर बंदा बेईमान देखेगा तो वो यही कहेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। कई लोग जाते हैं कब्र के सामने, जाते उसे सिजदा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये हमारी मोहब्बत है, हम सिजदा उस नज़र से नहीं कर रहे। लेकिन ये ज़रा सोचे ना, आपको देख के कुछ छोटा भाई ठोकर खा जाए तो ऐसा हरकतें नहीं करें। तो खैर, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद अजीज़ों, और क्या बुत परस्ती हो सकती है? और बुत परस्ती भी हमारे सामने बहुत सारी हैं, आप भी चीज़ें सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं चाँद सूरज की परस्तिश हम नहीं करते, गीत गाया था बड़ा मशहूर ज़माना। तो चाँद सूरज की परस्तिश हम करते हैं, दुनिया के माबूदों से हम नहीं डरते। चाँद सूरज की परस्तिश, इस तरह कुछ था। तो चाँद सूरज की परस्तिश भी हम करते हैं। जब सूरज ग्रहण लगने वाला होता है तो प्रेग्नेंट औरत को बोलते हैं भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वरना मुँह पे निशान आ जाएगा। सूरज देवता से इतना ही हमें डर लगता है तो भाई यीशु मसीह को मानना छोड़ दीजिए, जिंदा खुदा को मानना छोड़ दीजिए। चांद ग्रहण लगने वाला हो तब भी ये हमें बातें सुनने को मिलती हैं। तो क्यों नहीं करते हम चांद सूरज की प्रस्तिश? हम उनकी पूजा क्यों नहीं करते? उनसे डरने का मतलब है कि उनकी हरारत हमें नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि किड्डा सोना जबूर है, दिन सूरज ना तेनू सतावे, राती चन्न भी ना कुछ दुख पहुंचावे। ये जिंदा खुदा की कुदरत है अजीजो। कई बच्चे पैदा होंगे ने उन्होंने वाल फड़ के ही संभाल लेने, क्यों जी बाहरों को फड़ लेगा तो है वही, फिर की होएगा, कोई काला जादू ना कर ले। बताइए, वो भाई ये बच्चे के बाल ही सिर्फ रखने थे, जो नहा के उसकी मैल उतारी है वो भी रख लो, जो कपड़े उतारे हैं वो भी रख लो, कई तो वो भी कपड़े भी रखते हैं। तो अजीब हमारी ज़हनियत है। काली बिल्ली रास्ता काट गई, ओहो, ये तो अब जो दिन है ना, सुपरटिशियस लोग, सस्पेशियस लोग ये पूजा करते हैं। ये भी इस तरह की भी बुत परस्ती है। जाते जाते वेख्या चर्च आ रहा है, इबादत खाना आ रहा है, उन्होंने हाथ ला के चुमया चटया और ये क्रॉस का निशान बनाया। ये क्या है भाई? आपको किसने कहा इस तरह ऐसे करो? कई आप देखते हैं इतनी खूबसूरत गाड़ी मर्सिडीज लेते हैं, होंडा सिविक लेते हैं, सिटी लेते हैं। इधर हमारे पड़ोसियों में ऐसा हुआ था, नीचे एक गंदी सी चप्पल लटका दी। ये क्यों जी? नजर न लगे। तो आप किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, किससे डर रहे हैं? फिर आप देखते हैं कि हमारे बच्चे पैदा होते हैं, उनको खंघ लग गई है, उनको पेचस लग गए ने, और पेट दर्द हो रहा है। ओहो, इसको जी वो लग गई है, क्या लग गई जी? नजर लग गई है। चूल्हे उत्तो वारो, सारी हिंदुओं की रस्में, सारी गैर कौमों की रस्में, चूल्हे उत्ते वार के मरचा सट्ठो। ये क्या है? कई सूर ही खा आंदे ने, कहंदे ने मेरे ते जादू हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। क्यों भाई? मैं सूर दा गोश्त खादा है, कई सूर दी हड्डी बन लेंदे ने। ये किसकी पूजा कर रहे हैं? ये बुत परस्ती ही तो है, और क्या है? कई और भी इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं। कई एक मसीही कहा जाता है, रियाजतों पे जाते हैं, ज़ियारतों पे जाते हैं, गोड्यों के बल जा रहे हैं, कोई कोनियों के बल जा रहा है। एक बच्चे को मुझे इतना तरस आया, बच्चा था छोटा 6-7 साल का, 6-7 महीने का, उसे दुपट्टे से एक वालिद साहब ने पीछे कमर पे बांधा है, धुप निकली हुई है और वो पहाड़ी पे चढ़ रहा है वालदा साहिबा को मिलने के लिए, और कोनियों के बल जा रहा है। क्या ज़िंदगी है हमारी, क्या कीड़े मकोड़े बना के रख दिया है। हमें यहोवा ने इन कामों के लिए चुना है, हमें यीशु मसीह ने इन कामों के लिए चुना है, हमें खुदा रूल कुदुस ने इन कामों के लिए चुना है। क्या ये गैर माबूदों की प्रस्तिश नहीं? क्या हम खुदा के हजूर गैर खुदाओं की इबादत नहीं कर रहे? क्या हम बुत परस्ती नहीं कर रहे? और क्या क्या मैं आपको बताऊं, क्या क्या किया जा रहा है मसीहत के अंदर। ये सब कुछ मसीहत के अंदर हो रहा है, किसी गैर कौम में तो हो ही नहीं रहा। ये सारे काम होते हैं मसीहत के अंदर। ये सूरों वाली बात सुने, ये जो आपके सामने अगर कहे ना तो उसको बोलना भाई जिसके अंदर सूर घुसे थे ना, जिसके अंदर लश्कर था, जो कब्रिस्तान में रहता था बंदा, उसके अंदर से जब सूअर निकले, उसके अंदर से बदरुओं का लश्कर निकला था ना, वो सूरों में घुसा था। और सूअरों को देखें, सूअरों को इतनी शर्म थी कि वो झील में मर गए।
وہ دریا میں گر کے مر گئے. سوروں میں اتنی عقل تھی, اتنی شرم تھی, اتنی غیرت تھی کہ لو جی ساڈے وچ کون آ گیا, مار ہی جاؤ ایدو چنگا ہے. تے اسی ڈنکے دی چوٹ تے کہنا میں کھادا, میرے اندر شیطان نہیں آئے گا. کیا سوچ ہے ہماری, کس نسل کی بت پرستی کرتے ہیں ہم. کیسے مسیح آپ کو بچائے گا, کیسے خدا کے بیٹے آپ. کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہ 10 حکم ہمیں ایسی نہیں دے دیا, ہمارے بہت تیرے پاسبانوں کو کیا, کلیسیا کو کیا, بہت تیرے سینئر جن کے آگے ہم لگا دیتے, ان کو بھی یہ 10 حکم نہیں آتے ہوں گے, ان کو بھی یہ 10 حکم نہیں آتے ہوں گے. آج شکر ہے خدا کا ہمارے پاس 4 5 سال کے بچے, وہ آپ کو ایسے سنائیں گے کہ جیسے کوئی سبق پڑھ رہا ہو بچہ, منہ زبانی سنائیں گے آپ کو. یہ کیوں نہیں یاد ہمیں؟ یہ کس لیے دیے گئے تھے, کس لیے دے؟ پوری دنیا ان 10 حکموں کے اوپر چل رہی ہے, پوری کائنات ان 10 حکموں کے اوپر چل رہی ہے. بتائیں کون سا ملک ہے جہاں پر لکھا ہو خون کرو؟ کون سا ملک ہے جہاں لکھا ہو زنا کرو؟ عزیزو یاد رکھیے گا, قرآن مجید میں ایک آیت ہے, کہا جاتا ہے کہ جو کوئی سبت کو نہیں مانے وہ بندر بن جائے, اور وہ بندر بن بھی گئے. اور یہ ایک واحد حکم ہے جس کے آگے لکھا ہے یاد کر کے, یاد کر کے وارننگ دی گئی ہے. ان 10 حکموں کے اوپر, ان 10 کمانڈمنٹس کے اوپر, ان 10 حکموں کے اوپر کل کائنات ٹکی ہوئی ہے. اگر ان کاموں میں سے کوئی بھی کام بول دیا جائے نا, پائی آ کرو دبا کے, جس کے آگے لکھا ہے نہ کرو اور وہ آپ کہیں گے کرو, اور جس کے آگے لکھا ہے کرو اس کو کہے آپ نہ کرو. مثال کے طور پہ لکھا ہے خون نہ کرنا, اور آپ اپنے کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیں کہ خون کرو, تو کیا حال ہوگا ملک کا, کیا حال ہوگا ملک کا. ان ملکوں کے اوپر 10 حکم لاگو ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ برٹش کی حکومت کو, جنہوں نے 200 سال اس حکومت پر, اس دنیا پر راج کیا ہے, 200 سال, 100 سال تو ہمارے بر اعظم پہ ہی کیا ہے, ایشیا پر, جس میں پاکستان, انڈیا, نیپال وغیرہ جو الگ الگ ہو گئے. 100 سال تو ان پر کیا, 200 سال پوری دنیا پر حکومت کی. جہاں سے سورج اگتا ہے, نکلتا ہے, اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے, وہاں سے لے کے وہاں تک, سورج نکلنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک برٹش قوم, انگلینڈ, یو کے کی حکومت تھی. خدا کو وہ جانتے تھے, اور آج ان کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن جو ہیں, آج ان کے بنائے ہوئے لاز جو ہیں, ان کے بنائے ہوئے جتنے بھی لاز ہیں حکومتوں کے اندر, عدالتوں کے اندر, سب وہی چل رہے ہیں. اور آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں, کائنات میں ہر ایک جگہ پر جہاں پر بھی عدالت پائی جاتی ہے, یعنی دنیا کی ہر ایک قوم کے اندر, ہر ایک قبیلے کے اندر, ہر ایک اہل زبان کے اندر, ہر ایک اہل لغت کے اندر, جہاں پر بھی یہ قوم پائی جاتی ہے, جہاں پر جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں, ہر کائنات کی عدالتوں کے اندر سب سے پہلے آپ کو یاد کرنے ہوتے ہیں یہ 10 حکم. یہ 10 حکم آپ کو یاد کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ اگلی اپروچ پہ جاتے ہیں, تو مقدس سلیمان بادشاہ نے جو حکمت مانگی تھی خدا سے, 2 عورتوں کے اندر اس بچے کا انصاف کیا, وہ سلسلہ بھی مانگا جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن, یہ 10 حکم جو ہے پوری دنیا کے اندر ہیں. اتنی اہمیت ہے, غیر قومیں اسے مان کر آج زمین پر عزت کما رہی ہیں. یہ 10 حکم, مثال کے طور پہ آپ زنا کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, تو آپ کی عزت ہوگی؟ آپ کی عزت ہوگی؟ نہ آپ کی زمین پر عزت, نہ آسمان پر عزت, تو سب تو وڈی گل نہ تواڈے گھر چ عزت. خدا نے اسی لیے کہا میں نے تجھے اس لیے حکم دیا, پہلے تو تیری عمر کی درازی ہو, میں نے تجھے اس لیے حکم دیے تاکہ تو برکت پائے, میں نے تجھے اس لیے حکم دیے تاکہ تجھ سے میری محبت ظاہر ہو, میں نے تجھے اس لیے حکم دیے تاکہ تو زمین پر اور آسمان کے خدا کی نظر میں عزت پائے. جو زنا نہیں کرتا, چوری نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, خون نہیں کرتا, بھائی اس کی عزت ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ غیر قوم کا ہے, چاہے وہ آپ کی قوم کا ہے, چاہے وہ میری قوم کا ہے, کتنی عزت ہے اس کی. تو عزیزو یہ 10 حکم جو ہیں یہ کوئی ایویں ہی ہمیں نہیں دے دیے. اور آپ 20 باب کی 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں, اگر تو ان کے آگے سجدہ کرنا, نہ تو ان کے آگے سجدہ کرنا, نہ ان کی عبادت کرنا, کیونکہ میں تیرا خداوند خدا غیور خدا ہوں. غیور کا مطلب ہے غیرت مند خدا ہوں. ارے مجھے غیرت ہے, میرے سامنے کوئی اس طرح کی بت پرستی مت کرنا, میرے سامنے کسی بابے کو مت لانا, میرے سامنے کسی پیر کو مت لانا, میرے سامنے کسی فقیر کو مت لانا, میرے سامنے کسی بھی
किसी भी किस्म के ऐसे गैर माबूद को मत लाना, मेरे सामने कोई बुत को मत लाना, मेरे सामने कोई सूरत को मत लाना, मेरे सामने किसी भी चीज़ की बुत परस्ती ना करना, चाहे वो तराशी हुई मूरत हो या किसी चीज़ की सूरत हो, मेरे सामने मत करना, क्योंकि मैं तेरा गयूर, मैं गैरतमंद खुदा हूँ। जैसे मैं गैरतमंद हूँ, जैसे मैं गैरतमंद खुदा हूँ, तो मेरी लोग भी वैसे गैरतमंद हों। जैसे मैं गैरतमंद बादशाह हूँ, मेरी रयाया भी गैरतमंद हो। जैसा मैं गैरतमंद चरवाहा हूँ, मेरी भेड़ें भी वैसी गैरतमंद हो। जैसा मैं गैरतमंद सरदार काहिन हूँ, मेरी कलीसिया भी वैसी गैरतमंद हो। और जो कलीसिया ये काम करती हैं, खुदा के हुक्मों को नहीं मानती, क्या वो गैरतमंद हैं? गैरतमंद का ऑपोजिट लफ्ज आपको पता ही होगा क्या है। वो गैरतमंद है या वो हैं? अजीजो जानिए, ये खुदा ने ऐसी लफ्ज नहीं दे दिए। और आपको पता है जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानता वो क्या कहता है? लिखा है, जो मुझसे अदावत रखते हैं, यानी जड़े खुदा दे हुक्मां नूं फिर नहीं मानदो, खुदा ना अदावत रख देने। नए अहदनामे में आपने नहीं पढ़ा, रोमियो के खत में पौलुस रसूल क्या कहता है? रोमियो के खत में पौलुस रसूल कहता है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। यही काम आप देखते हैं आसमान पर भी हुआ। गुनाह की मजदूरी क्या थी? मौत। यही काम आप देखते हैं बाग अदन में हुआ। गुनाह की मजदूरी क्या थी? मौत। यही काम आप देखते हैं बाग अदन के बाहर, जो कायन ने किया हाबिल के साथ। गुनाह की मजदूरी क्या थी? मौत। आज भी देखते हैं गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। और आने वाले वक्तों तक यही असूल, प्रिंसिपल, रूल रहेगा, कवानीन, हुक्म रहेगा। गुनाह की मजदूरी मौत है। जानबूझकर ये काम करेंगे तो जिंदा खुदा हमें नहीं छोड़ेगा अजीजों। वो कहता है, जो मुझसे अदावत रखते हैं, जो गुनाह करते हैं, वो मुझसे अदावत रखते हैं, मुझसे दुश्मनी रखते हैं। जो गुनाह करते हैं मुझसे दुश्मनी रखते हैं। तो फिर आगे कहता है, मैं उनकी औलाद और उसकी तीसरी चौथी नस्ल तक उसके बाप दादा की बदकारी की उसे सजा दूंगा। खुदा नस्लों को मारता है जब वो मारने पे आता है। नूह का जमाना याद है ना आपको? गुनाह के ही वजह से खुदा ने मारा ना उनको। सदूम और मूरा का ज़माना याद है ना आपको? गुनाह की वजह से ही मारा ना उनको। आने वाली दोज़ख याद जे ना, वो भी गुनाह की वजह से ही जाएंगे अंदर। वो भी गुनाह की ही वजह से जाएंगे, क्योंकि गुनाह की तो मजदूरी है ही मौत। इस गुनाह की मजदूरी मौत को ख़त्म करने के लिए खुदावंद शुरू से कुर्बानी देता आया, आखिर में अपने बेटे की भी कुर्बानी देते। अब कोई कुर्बानी नहीं है, अब कोई कुर्बानी नहीं है। अब तो खुदा का रूह आपके अंदर है। हम जब गुनाह करते हैं तो हम खुदा से अदावत रखते हैं। वो हमारी तीसरी चौथी नस्ल को इसलिए सजा देगा क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਤੁਖਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। खुदा ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ट्रांसफ़र ਹੁੰਦੀ है ना, तो लानत भी ट्रांसफ़र ਹੁੰਦੀ है। और छठी आयत में क्या लिखा है? और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं, उन पर रहम करता हूँ। जनाब, जो खुदा के हुक्मों पर मानते हैं, जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं, वो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, ना कि अदावत। जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं वो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, ना कि अदावत। एक बार फिर से कहूंगा, जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं वो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। मोहब्बत लफ्ज़ का मतलब क्या है? आखिरी बात आपसे करने को, मोहब्बत लफ्ज़ का मतलब क्या है? आप मसीहियों से पूछें, हमारे बहन भाइयों से पूछें, मोहब्बत लफ्ज़ का मतलब क्या है? खुदा से मोहब्बत करने का मतलब क्या हम समझते हैं? खुदा से मोहब्बत करने का मतलब क्या है? क्या कभी आपको किसी ने समझाया, बताया, या हमारे बहन भाइयों को जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको कभी बताया खुदा से मोहब्बत करने का मतलब क्या है? क्या कोई डिस्क्राइब कर सकता है कि खुदा से मोहब्बत करने की डेफिनेशन ये है? बाइबल बयान कर रही है, खुदा से मोहब्बत करने का मतलब ये है उसके हुक्मों पर अमल करना, उसके हुक्मों पर अमल करना। जी, क्या कह रहे हैं आप? उसके हुक्म सख्त नहीं बल्कि आसान है। छठी आयत में लिखा है, और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं, उन पर रहम करता हूँ। अजीज़ों, याद रखिएगा, हुक्मों को मानने का मतलब है खुदा से मोहब्बत करना। आपको नहीं पता? आप पढ़िए यूहन्ना 14 बाब उसकी 15वीं से 16वीं आयत, नए अहदनामे से। यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं
मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें दूसरा मददगार दे। ओ भाई, रुल कुदस भी आपको खुदा के हुक्मों पर अमल करने से मिलता है। यीशु मसीह अपने मुंह से कह रहे हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। तो मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। फिर आप देखने मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है, इसी की 24वीं आयत पढ़ें, आपको पता चलेगा जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है वो खुदा से मोहब्बत करता है। फिर आप देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 10वीं आयत में, वहां पर लिखा है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, जो खुदा के हुक्मों पर चलता है, वो खुदा से मोहब्बत करता है। फिर आप देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 3री आयत, लिखा है कि जो खुदा के हुक्मों पर चलता है, खुदा के हुक्मों को मानता है, वो खुदा से मोहब्बत करता है। मोहब्बत की डेफिनेशन तो ये बताती है। अही कहने अही जी बड़ी मोहब्बत करने बड़े खुदा ना बड़ी मोहब्बत करने ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖੀ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਛੱਡ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो अपने वालों ने कुर्बान ही कर छड़िया ही। तो अजीजो जरा सोचिए समझिए, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ कहना अच्छा बेटा ज़रा 10 रुपये लै सामने कुछ है तो लै के आ। नहीं वो मैं नहीं लिया सकता, ज़रा फिर ना बाद चो लिया था। ओ भाई हुक्म आप मान नहीं रहे तो मोहब्बत आप कहाँ से कर रहे हो। आज हमारे माँ बाप हमें गलत कामों से रोकते हैं, क्या हम उनके हुक्म को मानते हैं? तो मोहब्बत कहाँ से कर रहे हैं। अब हम अपने अज़ली और अबदी खुदा से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं, उसके हुक्मों को मान के। तो अजीज़ो खुदावंद ने चाहा आज ये 2 हुक्मों पर हमने नज़र किया, और 5वां हिस्सा जो कि आखिरी हिस्सा होगा द टॉपिक 10 कमांडमेंट्स का, आखिरी हिस्से में हम जानेंगे कि खुदावंद बाकी हुक्मों में क्या फरमाता है। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। जय यीशु दी, अरशा यीशु दी, मसीह में आप सबकी सलामती हो।